चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक अलग से टॉपिक पे आपके साथ बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो आज के स्पीकर हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो रिटायर्ड कर्नल हैं। फौज से रिटायर होने के बाद और वहाँ पे जितना उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस लिया, जो फौज में उन्होंने सीखा, उसको उन्होंने मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के में सोशल सर्विस शुरू की और धीरे धीरे इस लेवल तक लेके गए कि मनी माजरा का नाम चेंज करके उसको सेक्टर 13 नाम देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने सारे वर्क एक्सपीरियंस को 3 किताबों के रूप में ढाला, जिनको हर स्टेट के अलग अलग गवर्नर्स ने रिलीज किया और आजकल ये समाज सेवा के साथ साथ लोगों की जिंदगी बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा रिटायर्ड कर्नल गुरसेवक सिंह से। सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। सर, आज का हम जो शो शुरू करेंगे, जैसे अभी कोविड की जो सिचुएशन चली है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लोगों में इस वक्त जो सिचुएशन है वो पैनिक होने के साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल ज्यादा है। मतलब लाइफ तो वैसे भी हर एक की स्ट्रेस है, लेकिन आजकल थोड़ी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। तो इसके लिए सर, आप बीइंग ए लाइफ कोच, सर लोगों को क्या टिप्स या क्या रेमेडीज देना चाहिए? टिप्स और रेमेडी देने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस। यस। सो बेसिकली number of things happen around us every time, and our body respond to these things. The pressure created in our mind due to the response of our body to these events which we are facing, we can call it stress. Very simple. So sir, in scientific way they say it's a mental stress, it's a physical stress or otherwise kind of a stress. So how you describe it? Is a one of the same thing or it is a differently categorized? If the event is pleasant, then the body response is positive, and that is called good stress, technically called eustress. Okay. So we need not bother about that. That's good for us. Okay, so stress is also having a positive side also. Exactly. So pleasant event like you are playing a match, you are going on a foreign tour, you are excited. So this is quiet. Suppose there were no stress, you will not enjoy these events. Okay, then if the event is negative, the situation you are facing is negative, like death in the family, accident ho gaya, financial problem, relationship problem, then the response which your body gives to this situation is negative. That is called distress or simply stress. So we must learn to manage this stress. And here I also want to add is that all stress is not bad for our well-being. In fact, certain amount of stress is required for the basic survival of our system. Suppose there were no stress, I don't think you would have come on ditto 11 times you have given to us. It is the stress which activates us, it is the stress which alerts us, it is the stress which motivates us to do something, it is the stress which helps us to achieve results. And this is called good stress. When this crosses a particular limit, we call it tension tolerance level. Each one of us have different TTL. Then it become adverse to your system, and that is called bad stress. We must learn to manage that. सर, अब बात ये है कि ये तो हो गया कि अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस। कुछ लोग स्ट्रेस के कारण उनको फोबिया भी हो जाता है, लोग कुछ बैड इफेक्ट्स में चले जाते हैं। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज का भी हमने पीछे पढ़ने में आया कि वो एक बैड फेज ऑफ लाइफ में भी चले गए। तो सर, उसको धीरे धीरे ओवरकम कैसे किया जाए या कैसे पता चलता है ये आदमी एक्चुअल में स्ट्रेस में है? Let's understand what the sources. स्ट्रेस आती कहाँ से है, then how it affects your body, जो आपने बोला। Now sources of stress are basically two. You get from the environment and you create yourself. Right. Very interesting. Right. Yeah. From the environment you get from the two places. The place where you work is called professional stress. And place where you live is called domestic stress. Now, if you don't come up to the expectation of your organization or your boss, you will create stress for yourself and you will create stress for your organization also. The reason for that could be again two. You are not competent to hold that post which you are holding. You are there for reasons other than merit. So he will create stress. Other is that you are not compatible with this job. Compatible means suppose you are an engineer, qualified engineer, and you are a technical hand. You didn't get job anywhere.
So what do? You start teaching engineering student, coaching them. But inherently, you are not good at teaching. Your expressions are not good, so you will create stress. Now, if you come to domestic stress, all the domestic problem which we all have, ये हो गया, वो हो गया, but we are meant to solve these problems, so that if you are well trained, if you know the trips, you will have no stress on that issue. But the major source of stress, domestic stress, is today your relationship with your parents, with your sibling, jealousy feeling, with your children also, but above all with your spouse. So since this is so important, the major source during this corona period also has been when the husbands were not going on work, everybody was at home. So there have been cases of major stress due to strained relationship, fear of the unknown, fear of the death, fear of uncertainty, then anger, feeling of revenge. All these negative vibration also create stress within you. So outside stress and inside stress gets accumulated, it starts manifesting in your system, then it turns into a physical stress. When you start fatigue, you get exhausted. So that means now, your question, now is the time to understand how do I know कि मेरे को stress हुई. सर मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा. आज ही न्यूज़पेपर में खबर है, एक बड़ी सीनियर IAS ऑफिसर है, उनकी वाइफ, वो भी अपना पोस्टल सर्विसेज में बड़ी सीनियर पोजीशन पे है. वो 2 साल से इतनी डिप्रेशन में चल रही थी कि उन्होंने कल रात लास्ट सुसाइड कर लिया. सो मतलब स्ट्रेस का लेवल इतने तक है कि आदमी अपने आप को खत्म कर लेता है. Yes, now I tell you, very good question. What happens is that when you get up in the morning, you have that feeling that life is not good. There's nothing, vacuum है. There is a state of nervousness. पहले तो आपको रात को नींद अच्छी तरह नहीं आती. अगर आप गोलियां खा के सो भी जाते हो फिर आप उठते नहीं हो, और जब उठ जाते हो तो then you don't feel like working. Then now these are the symptoms which we are going to discuss. Is that you get that way, I don't want to mix up with anyone. Social life आपको अच्छी नहीं लगती. You want to be left alone. Then I have a pain here, I have a headache, I have why? Because your immune system with stress is going down, and you start getting all sort of pain. Your irritation level go, you become a short-tempered because of the stress. So the stage arrives when you start feeling that life is not worth living, and it is a momentary, it is an impulsive thing. When you feel that life is not worth living, and that is the time a person commits suicide. सर नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि सुसाइड की, जैसे आपने बात करी कि वो एक स्पिन ऑफ मोमेंट होता है कि अगर उस वक्त आप किसी का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो तो वो कभी भी सुसाइड नहीं कर रहा है. Exactly. Nobody wants to die. You are absolutely right. It is that moment or that phase of the time and day. If that gets postponed due to any other reason, probably the person will think again, यार मैं क्यों मरना है. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें कि इनिशियली जब स्ट्रेस होती है ना, वी डोंट कम टू नो. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए साइलेंट किलर. आपको चुप करके मारती है. बट व्हेन इट बिकम ए क्रॉनिक, देन इट स्टार्ट अफेक्टिंग, फर्स्ट इट अफेक्ट्स योर आई साइट, देन हियरिंग एड, देन किडनीज. जब आप और बढ़ जाए, जब फिजिकल हो जाए, जो मैंने बोला फटीग होती है, उस टाइम इट्स ए मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द diabetes, blood pressure and even the impotency. तो अगर इसको टेम्पर चेक नहीं किया गया तो फिर ये सारा कुछ होता है जो मैंने अभी बताया. तो सर इसमें अगर मैं छोटी सी बात कहूँ कि जैसे आपने इसमें एंगर का पार्ट लिया, अगर फैमिली में हमें लग रहा है कि एक आदमी जो बड़ा ठीक है वो छोटी छोटी बात पे एंगर हो जा रहा है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो गया, तो हमें कहीं ना कहीं फैमिली को समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील है या स्ट्रेस में जा रहा है. बिल्कुल ठीक है. अगर वो बाय नेचर ऐसा नहीं था, लेटली यू फाइंड हिम गेटिंग एंग्री, थोड़ी सी बात. पहले उसके पास अपने बच्चे आते तो लैब में खेल के खेलता था, लेकिन कुछ दिन से आप देख रहे हो जो बच्चा उसको बोलता भाग जाए, डोंट डिस्टर्ब मी. इसका मतलब उसका स्ट्रेस लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि वो इवन ही डन लाइक हिज ओन चाइल्ड. सो दैट मीन्स यू हैव टू सिंपैथाइज विद हिम, find out a remedy rather than getting angry with him.
भाई तू क्यों अपने बच्चों को डांट रहा है. सो द मोमेंट यू फेस ए सिचुएशन विच कॉज स्ट्रेस टू यू, तो आपके अंदर एक रिएक्शन होता है. वो रिएक्शन से सर्टेन स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज इन योर ब्लड, एंड उसमें से एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल आर द टू मेन. द मोमेंट दे आर रिलीज इन योर ब्लड, इंस्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं. दीज चेंजेस भगवान ने, कुदरत ने बनाए फॉर योर गुड. अगर ये चेंजेस ना हो तो यू विल डाई ऑफ दैट स्ट्रेस. दैट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस और यू आर एंग्री, योर ब्रीदिंग बिकम फास्ट, erratic. आप बैठे बैठे किसी को गालियां दे रहे हो, किसी बोल, आप देखेंगे आपका सांस तेज हो जाता है. ब्लड प्रेशर बॉडी का रिएक्शन है. क्यों? ऑक्सीजन, बॉडी डिमांडिंग ऑक्सीजन. सेकंड आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऑक्सीजन तो अंदर आ गई, उसको सर्कुलेट भी करना. हु विल डू इट? ब्लड. ब्लड को कौन तेज करेगा? हार्ट बीट. ब्लड प्रेशर राइजेस, पल्स रेट राइजेस, तो वो हो गया. और आपके पास जो एनर्जी रिजर्व पड़ी है ना, वो भी आपकी स्ट्रेस को डील करने में लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, योर स्टमक स्टॉप वर्क ऑफ डाइजेशन. वो कहना यार रोटी बाद में हजम करेंगे. अभी ये जो एनर्जी सेव्ड है ना, दिस इज गिवन टू द डिफेंस मैकेनिज्म. योर लिवर स्टार्ट रिलीजिंग मोर ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज तो रिलीज कर रहा है, इट मल्टीप्लाइज. जितनी स्ट्रेस ज्यादा, उतनी ग्लूकोज ज्यादा रिलीज करता है. वाई? क्योंकि ग्लूकोज इज एनर्जी. उस टाइम आपको एनर्जी चाहिए. देन कैपिलरीज ऑन योर स्किन जितने भी है, दे गेट कंट्राइक्ट एंड देयर ब्लड कंटेन देयर इज डाइवर्टेड टू योर मेन ऑर्गन, एंड दैट ऑर्गन इज, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे ब्रेन है. आपने नोटिस किया होगा कि जब बंदा स्ट्रेस में, बंदा काम कुम ना करता ना, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा स्ट्रेस में डाल दो, प्रेशर डाल दो, एंड योर परफॉर्मेंस गोज अप. बिकॉज ऑफ दिस. बच्चों को भी जब स्ट्रेस होती है तो ज्यादा पढ़ते हैं. अच्छा, अभी ये नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड लेके आया, यू थिंक इट वाज विदाउट स्ट्रेस? No, he was under It tremendous is the stress. stress which help you to achieve the excellent results. तो ये मेन ब्रेन में चला गया. देन आर्टरी लीडिंग टू योर हार्ट, आर्टरी लीडिंग टू योर ब्रेन, ऑल आर कंट्रैक्ट, सिकुड़ जाती है जब स्ट्रेस होती है, उनको दबा लेती है ये. और ऑल योर मसल्स बॉडी के, दे बिकम टाइट. ये आपके फायदे के लिए. तो अगर ये भगवान ने इसलिए बनाया कि अगर आप छत से गिर भी जाओ, आपके कोई लठ मार देना, पेन उस टाइम नहीं होता, पेन बाद में होता है. जिन्होंने कहना तत्ते का, तत्ते का. एक बंदा गिर गया, उसकी बांह टूट गई, बांह आपके हाथ से चक्की टूटी, फिर हॉस्पिटल पहुंच गया, उसे जाके बहुत पेन हुआ. सो सर्टेन मसल बिकम वेरी लूज ऑल्सो. जब आपका रेक्टम मसल, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू भाई करण जी आपकी ना लॉटरी निकल आई 2-4 करोड़ की, जाके ले आओ. नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? आपको यू विल गो नियर द बाथरूम, बिकॉज योर रेक्टम मसल एंड ब्लैडर वो एकदम लूज होते जा रहे. सो दिस इज शॉक ट्रीटमेंट. चाहे अच्छा शौक है, चाहे बुरा शौक है, क्योंकि बॉडी को तो पता नहीं ना भी लॉटरी अच्छी, उसको ये पता है शौक लग गया. तो जैसे सो ये जो आपके ऊपर असर होता है, इसका अगर आपने सुना होगा, एक थ्योरी होती है फाइट और फ्लाइट. ये स्ट्रेस में ये समझना बहुत जरूरी है. इधर यू फाइट और यू भाग जाओ. जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे फोर फादर होते थे ना प्री हिस्टोरिकल डे में, वो पीछे चले जाओ, तो वो जंगल में जाते थे, उनके हाथ में एक लाठी होती थे. स्मॉल एनिमल लाइक कैट और डॉग, तो लाठी नाड़ू मार देते. दैट इज फाइट. एंड इफ देयर इज अ बिगर एनिमल लाइक भालू, so they have to run away and save themselves. So this theory is called fight or. ਜਦੋਂ fight and flight ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ all the stress hormone released in your system they get neutralized. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੌਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, they started shouting at him, you didn't do this, you didn't do this, ये वो फलाना. Now can that man fight? If he fight, he loses his job. और कैन ही से तू बोलता रहा मैं चलिया, he can't. So it's a pressure cooker situation in his mind. That is the most harmful thing, because all your emotions are pressed, you are not able to release them. Today the life which we are living, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ right from the morning till evening, if you introspect ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ late ਹੋ ਗਏ and ਸਵੇਰੇ you get up late, then you hurriedly breakfast and then you start by your work. रास्ते ट्रैफिक जाम आ गया,
स्ट्रेस शुरू हो गई। उत्थे पहुंचे तो बॉस ने डांट दिया, फिर स्ट्रेस शुरू हो गई। एंड शाम को बच्चा बीमार हो गया, उत्थे ले we live from one stressful situation to another situation. Now you analyze it. That means all the time you are releasing glucose from your liver. उन सुक्कण का मौका तो आपने दिया ही नहीं, तो that means तो डायबिटीज होना ही। All the time your arteries are contrived, वो रिलैक्स तो हुई ही नहीं। तो if you were suffering from the bad cholesterol, तो हार्ट अटैक तो होगा ही नहीं, या एंजाइना पेन तो होगा ही ना। कैन यू चेंज द वर्ड? यू कांट चेंज। जो लाइफ में हम रह रहे हो तो ऐसे ही रहेगी, जस्ट यू कैन चेंज योरसेल्फ। सो आपके पास अभी दो ऑप्शन है। वन इज यू लर्न द टिप्स टू मैनेज द स्ट्रेस, दैट यू हैव द स्पेशलाइज्ड बॉडी माइंड टेक्निक्स, जिससे आपको जो स्ट्रेस सारा दिन आपने ले ली बिफोर यू गो टू स्लीप, उससे आप 10 मिनट में उसको बाहर निकाल के हैव ए पीसफुल स्लीप एंड गेट अ फ्रेश इन द मॉर्निंग। तो सर फिर उस पे आया जाए कि रेमेडी आप बताइए। One is it's a basically if you have a correct attitude in life and a correct approach, तो काफी हद तक आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और आप डैमेज होने से बच सकते हो। Now when I say correct attitude जो आपकी होनी चाहिए, so the first thing is you should adopt a positive attitude in life, वैसे ही आपको बहुत बातों से स्ट्रेस नहीं होगी। ठीक है सर। अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, बिकॉज सिचुएशन आपके इर्द बनती जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अटेंड ए मीटिंग, रास्ते में ट्रैफिक, तो इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, हाउ टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन विदाउट गेटिंग ए स्ट्रेस। सी व्हेन यू सी ए ट्रैफिक जैम, तो उस टाइम एकदम स्ट्रेस नहीं आती। सेकंड स्टेप आपके दिमाग में आता है कि यार ट्रैफिक जैम से व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेज है आई विल बी लेट, आई विल बी डिलेड, और मेरे को डांट पड़ेगी और जो मेरा वो काम है खराब हो जाएगा। वहां से स्ट्रेस बननी शुरू हो जाती है। एंड नॉर्मल हम गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं जरा अभी क्या होगा, वो बंदा मेरे को डांटेगा, तो उससे क्या होता है आपकी स्ट्रेस मैनिफेस्ट करके बढ़ती जाती है। नाउ व्हाट शुड वी डू? रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि जैसे ही आपको लगा कि ट्रैफिक जैम के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज तो नेचुरल आप सोचेंगे, उसको वहां ही रोक दीजिए एक बार सोच के, वो तो आएगा दिमाग में। फोकस योर अटेंशन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस टू द रेमेडी। इसका इलाज क्या सोचो? एक सिंपल इलाज है, आप फोन से उधर बता दो यार आई एम इन द मिडल ऑफ द ट्रैफिक जैम, तो आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा एक और है, फाइंड आउट ए अल्टरनेटिव रूट। देखो कि जैम के बीच में से निकल के आप वहां से कोई ऑटो लेके आप निकल जाओ जैसा से, सो उससे दूसरा फायदा हो गया। जो स्ट्रेस मैनिफेस्ट होके बढ़ रही थी वो वहीं रुकी और आपको रेमेडी भी मिलेगी। तो ये मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको कभी फिर कवर करेंगे, लेकिन स्ट्रेस को सबसे बढ़िया तरीका मैनेज करने का है इफ यू कैन लर्न टू बी हैप्पी। तो दोस्तों आज हमने सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि स्ट्रेस होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलता है और स्ट्रेस को अवॉइड किया जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, या हमारी ये उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको जिंदगी में स्ट्रेस को बीट करने के कुछ ना कुछ टिप्स जरूर मिलेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और चर्चा में।